Hello students, today I am going to discuss a numerical based on the cooling and dehumidification. So the numerical is determine the final dry bulb temperature and relative humidity of the air washed with recirculating spray water if the air is initially at a dry bulb temperature of 35 degrees centigrade and 50% relative humidity. As it enters an air washer which has humidifying efficiency of 85%. The same numerical I have discussed in lab class also. I repeat it in the video lecture. So those students who was absent in lab class may benefited by this lecture. This is the process of cooling and humidification, and how we identify this is the cooling and humidification. First of all, as I discussed in the theory portion, when we cool and humidify the air, we pass the air from a chamber. In this chamber, a spray water, we spray the water. The temperature of this air is T1. Temperature of the exit air, this is the point 1, this is the point 2. Exit air is TD2. And temperature of this water is T, suppose TW. Okay. If we cool the air will come into the contact of this water. When this air will cool, the air will cool only if the temperature of the air is more than the temperature of this contact surface or this water. So TD1 is greater than TW. TW will be less than TD1. Okay. And when it will be humidify means the water vapor will, water content will absorb by this air, added in this air. When the water vapor will added in this air, and when the water vapor will condense. If the temperature of this air is entering, it has some dew point temperature, that is TDP. TDP, dew point temperature of the air entering. If this dew point temperature, the temperature of the air, the dew point temperature of the air entering is greater than this temperature TW. If TW is less than this dew point temperature, then the dehumidification will start. कंडेंसेशन ऑफ द, क्योंकि क्या है, इसका टेम्परेचर कम है, ये टेम्परेचर ज़्यादा है, जब इसके कांटेक्ट में आएगा तो जो वाटर वेपर होगा वो कंडेंस होना शुरू हो जाएगा. ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे अगर एयर आएगी किसी के कांटेक्ट में तो वो कंडेंसेशन होना शुरू हो जाएगा, वाटर वेपर उसकी कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे. तो ह्यूमिडिफिकेशन के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, ये टेम्परेचर जो एयर इंटर हो रही है आपकी उसके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए, TDP से ज़्यादा होना चाहिए. तो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ द ह्यूमिडिफिकेशन एंड कूलिंग. जो एयर कांटेक्ट में आ रही है उसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए वाटर के टेम्परेचर से, और जो एयर इंटर हो रही है उसका जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा वो कम होना चाहिए जो वाटर का टेम्परेचर, यानी कि वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, जो एयर इंटर हो रही है उसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कम होना चाहिए, तब ह्यूमिडिफिकेशन होगा. और कूलिंग कब होगी, कूलिंग का सिंपल आपका लॉजिक है, जब कोई बॉडी हॉट बॉडी कूल बॉडी के कांटेक्ट में आएगी तो हॉट बॉडी कूल होगी. ओके. सो इंटरिंग एयर का टेम्परेचर आपका ज़्यादा होना चाहिए और जो कूलिंग वाटर है उसका टेम्परेचर कम होना चाहिए. ओके. सो दिस इज़ द प्रोसेस, दिस इज़ द कंडीशन ऑफ ह्यूमिडिफिकेशन एंड कूलिंग.
तो हाउ टू फाइंड इन न्यूमेरिकल दिस इज द ह्यूमिडिफिकेशन और कूलिंग, क्योंकि ये तो एक हेडिंग में दे रखा है, मैं पढ़ा रहा हूँ वही टॉपिक, तो आपको पता है ये कूलिंग होगा और ह्यूमिडिफिकेशन होगा। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे एग्ज़ाम में कूलिंग है क्या है। तो कूलिंग डिटरमाइन द ड्राइवल temperature and relative humidity of the air washed with the recirculating spray water if the air is initially at drivable temperature this and this as it enter the air washer which has humidifying efficiency of this. Okay, so यहाँ से आपको गिवन है कि ह्यूमिडिफाइंग एफिशिएंसी 85%। तो इसका मतलब ह्यूमिडिफाइंग एफिशिएंसी दे रखी है, यहाँ पर वाटर का टेम्परेचर नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर ह्यूमिडिफाइंग एफिशिएंसी दे रखी है, तो आपको पता है ये ह्यूमिडिफिकेशन होगा। ओके, दिस विल बी द ह्यूमिडिफिकेशन। अब आप पॉइंट 1 कैसे मार्क करेंगे। पॉइंट 1 के लिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है आपको और 55% रिलेटिव ह्यूमिडिटी दे रखी है। तो दो कंडीशन दे रखी हैं। 35 से आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, कहाँ तक ड्रॉ करेंगे 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी तक, और उससे आपका क्या होगा पॉइंट 1 की ये मार्क हो जाएगा। ओके, पॉइंट 1 मार्क होने के बाद रीसर्कुलेटिंग वाटर स्प्रे हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये एडियाबैटिक ह्यूमिडिफिकेशन है और कूलिंग है। ओके, तो वही वाटर यूज़ हो रहा है, तो इसका यहाँ से ये क्या होता है, ये अगर आप साइकोमेट्रिक चार्ट पर ड्रा करें, इफ यू ड्रॉ ऑन द साइकोमेट्रिक चार्ट the cooling and the humidification, so this is the cooling process, this is the humidification process, and the resultant of this is the this. So this is the resultant of this is the constant vertical temperature line, यानी कि इस पॉइंट पे, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे उनका वर्टिकल टेम्परेचर सेम होगा। तो यहाँ से तो हम TD1 पता है हमें, यहाँ पे TD2 मार लेंगे इसको TD3 यहाँ से हम 3 पॉइंट तक ले गए हैं इसको सैचुरेटेड कब तक। तो यहाँ से क्या है आप क्योंकि ह्यूमिडिफिकेशन एफिशिएंसी दे रखी है, अगर ये 100% ह्यूमिडिफाई होता एफिशिएंसी होती तो ये सैचुरेटेड कर्व तक जाता। ओके, तो हमने 100% मान ली सपोज करो, तो ये सैचुरेटेड कर्व तक जाएगा। वहाँ से हम क्या पता कर लेंगे, TW1 क्या होगा, वो TD3 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से हम ड्राइवल टेम्परेचर रीड कर सकते हैं, तो वो सेम होंगे। तो ये आपका TD3 आ गया, TD1 पता है आपको। तो ह्यूमिडिफिकेशन की जो एफिशिएंसी है उसका फार्मूला आपका क्या होता है, उसका फार्मूला होता है जो ड्राइवल टेम्परेचर पे पॉइंट है, पॉइंट 1 भी है, पॉइंट 2 है और पॉइंट 3 है। ठीक है, तो दिस इज द एक्चुअल, तो TD1 माइनस TD2 अपॉन दिस इज आइडियल TD1 माइनस TD3, अगर 100% ह्यूमिडिफाइंग एफिशिएंसी हो तो इसको पुट कर देंगे। इसमें TD2 नहीं पता है, TD2 हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। सारी वैल्यू में पता है, ये भी पता है। तो यहाँ से हमें जो एयर एग्जिट हो रही है उसका टेम्परेचर पता चल गया, पॉइंट 2 का टेम्परेचर पता चल गया TD2। अब हम TD2 जो भी टेम्परेचर से 27.43 आया है, ये यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, कहाँ तक करेंगे, ईस्ट कांस्टेंट ड्राइवल टेम्परेचर, क्योंकि 2 पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो यहाँ तक ड्रॉ करेंगे और यहाँ से ये हमारी क्या आ जाएगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके, दैट इज द 90%। तो दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द cooling and humidification. Now I will start the next topic, heating and humidification. Okay, now the heating and humidification क्या होगा, अगर साइकोमेट्रिक चार्ट पे हम ड्रॉ करें हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन तो क्या आएगा। साइकोमेट्रिक चार्ट है ये, we draw the heating is the process of this point 1 to 2 ड्राइवल टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एंड ह्यूमिडिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ दिस, इसमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ये होती है, ये इंक्रीज होगी। यहाँ पर ड्राइवल टेम्परेचर होता है DBT और यहाँ पर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी।
तो ह्यूमिडिफिकेशन में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है, वाटर कंटेंट आपका वाटर वेपर ऐड होती हैं तो वाटर कंटेंट आपका इंक्रीज होता है वाटर वेपर, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है। तो दिस विल बी द रिजल्टेंट of this. If we draw from the single line on the psychometric chart, this process is called the heating and humidification, because from here to here this process is the heating and this process is humidification. So the resultant of this is this. So from the by the single line we can draw this is the heating and humidification process. Heating and humidification हो कैसे सकता है? The process is generally used in the winter air conditions to warm and humidify the air. Okay. तो ये आपका क्या कैसे हो सकता है? कॉइल्ड है, ये जो चैम्बर है उसमें से हम एयर एंटर कराएंगे, इसमें हम वाटर स्प्रे कराएंगे। सपोज करो वाटर स्प्रे करा रहे हैं, ओके। इसका टेम्परेचर वैसे तो स्टीम स्प्रे कराते हैं, वाटर की जगह स्टीम स्प्रे कराते हैं। अगर हमें वार्म वाटर ही स्प्रे कराना है सपोज करो, तो इसका टेम्परेचर TW मान लिया। तो इसको हीटअप करना है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? TD1 का टेम्परेचर कम होना चाहिए, TW का टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। और ये ह्यूमिडिफाई भी हो। ह्यूमिडिफाई का मतलब क्या है? इसमें वाटर कंटेंट वाटर वेपर ऐड हों, ना कि वो कंडेंस हों। तो कंडेंस कब होंगी? जब इसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो एंटर हो रही है वो इसके टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, मतलब इसका टेम्परेचर इसके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम होगा। तो इसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होना चाहिए इसके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से। दिस इज द कंडीशन। ये अब हीटिंग हो रही है तो इसका टेम्परेचर ड्राई बल्ब टेम्परेचर से भी ज़्यादा होना चाहिए और इसके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से भी ज़्यादा होना चाहिए, तो हीटिंग होगी। अगर ड्राई बल्ब टेम्परेचर से ज़्यादा है वाटर का टेम्परेचर तो हीटिंग होगी, और अगर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से भी ज़्यादा है तो उसमें वाटर वेपर कंटेंट ऐड होगा। ओके, मेनली तो इसको हम कराते हैं स्टीम से, लेकिन अगर वाटर वेपर से भी कराएं तो वाटर से कराएं, वाटर वेपर इज़ ऑल्सो द स्टीम, सॉरी। तो अगर वाटर से कराएं तो वाटर का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो एंट्री एयर के टेम्परेचर से, ड्राइवल टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, तो जब एयर कांटेक्ट में आएगी इस तरह से तो वो टेम्परेचर गेन करेगी यहाँ से। ये वाटर स्प्रे हो रहा है और यहाँ से एग्जिट हो जाएगी। ओके, अगर यहाँ पर हम वाटर स्टीम कराते हैं, जनरली स्टीम इसमें कराते हैं आपका, तो क्या होता है? यहाँ से स्टीम जा रही है, वो इस पर स्प्रे हो रही है, एयर यहाँ से पास हो रही है। इसका टेम्परेचर TD1 है, इसका टेम्परेचर TW ज़्यादा है TD1 से। तो क्या होगा कि ये अपना यहाँ से ये क्या करेगा? ये टेम्परेचर देगा जो स्टीम में, और जब स्टीम अपना टेम्परेचर इसको देगी एयर को, एयर इसके टेम्परेचर को एब्जॉर्व करेगा, हीट को एब्जॉर्व करेगा और वो वार्म अप हो जाएगी। एयर जो एंटर हो रही है वो कम टेम्परेचर पे है, जो स्टीम हम स्प्रे करा रहे हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर पे है, तो स्टीम अपनी हीट ड्राई एयर को देगी, मॉइस्ट एयर है जो भी है व्हाटएवर। ओके, अब क्या होगा? जब स्टीम अपना टेम्परेचर देगा, टेम्परेचर ट्रांसफ़र होगा स्टीम का टू द एयर, देन द स्टीम विल स्टार्ट टू कंडेंस एंड बिकम वाटर। ओके, स्टीम जब कंडेंस होगा तो वाटर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, वो वाटर फॉर्म इस एयर में ऐड हो जाएगा। ओके, वो वाटर एयर एब्जॉर्व करके इसको एग्जिट कर देगी, तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट आपका बढ़ जाएगा, सो दैट द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विल इंक्रीज। ओके, so this is will be the process of the heating and humidification. एयर पॉइंट 1 पे एंटर हो रही है, पॉइंट 1 पे इफ़ द टेम्परेचर इज TD1, ओके, और दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ द हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। इसको दो पार्ट्स में आप देख सकते हैं। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ द हीटिंग एंड दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ ह्यूमिडिफिकेशन। सो हियर द सेंसिबल हीट, this is the sensible heat and this is at the constant temperature, this is the latent heat। ओके, constant temperature पे वाटर आपका इसमें मॉइस्चर कंटेंट ऐड होगा। ओके, सो द टोटल हीट Q इज दिस इज फ्रॉम H1 to H2, इसकी एंथैल्पी चेंज हो रही है, दैट इज द H2 - H1।
this H2 minus H1 can be written as H2 minus H1 from 1 to A. This can be written as H2 minus HA plus HA minus H1. So this term is latent heat. This term is latent heat plus this term is sensible heat. Okay. So this is total heat is the summation of latent heat and sensible heat, and the sensible heat factor SHF is equal to sensible heat upon total heat. So the sensible heat is, if we say, see the total heat is this can be written as H2 minus HA minus H1. So latent heat and sensible heat, and sensible heat factor, the formula of sensible heat factor is sensible heat upon total heat, sensible heat upon latent heat plus sensible heat. Total heat is the summation of latent heat and sensible heat, and sensible heat is HA minus H1. Okay, and total heat H2 minus H1. So this is the sensible heat factor. So स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन. बुक में आपका एक और प्रोसेस थोड़ा दे रखा है, अगर वाटर स्प्रे कराएं दिस इज द फॉर स्टीम. इसमें आप थोड़ा सा और रह गया, अगर आप मास बैलेंस लगाना चाहें, ये आपका एयर इंटर हो रही है, एयर एग्जिट हो रही है, वो स्टीम आपका स्प्रे हो रहा है या वाटर स्प्रे हो रहा है. इफ़ M is the mass of the steam supplied, MS is the mass of steam supplied, MA is the mass of dry air. W1 is specific heat of the air entering, W2 specific humidity of air leaving. Enthalpy H1 is the enthalpy of the air entering, and enthalpy of the steam enthalpy of the air exit, or the enthalpy of the steam injected into the air. This is written by mistake here. This is the H1 is the enthalpy of the air entering, H2 is the enthalpy of the air, just a minute, H2 is the enthalpy of the steam injected. This is HS. HS is the enthalpy of the steam injected, and H2 is the enthalpy of air leaving. Okay, H1 is the entering, H2 is the leaving, and HS is the enthalpy of the steam injected. By mistake it is some missing here, is the some data is missed. Okay, so if we apply the mass balance here, if apply the mass balance, then the MA is the mass of the air, MS is the mass of the steam. So at the entry point, what will be the entering? MA into the W1. This is the mass balance of the steam. Okay, water vapor. So if MA is the mass of the moisture in which the water vapor quantity of water vapor portion is MA into W1 plus MS, mass of the steam which is injected into the air, is equal to MA into W2. Both summation of both will exit. Okay, so this is the mass balance equation. Here MA, W1, MS, MA, W2. We can calculate W1 plus MS upon MA and W2. Okay, heat balance, if we apply the heat balance, H1 enthalpy is entering, mass of the H1 is MA, HS enthalpy of the steam will entering, MS is the mass of the steam, exit enthalpy MA is the mass of exit air, and H2. So we apply this, so H1 plus this MS upon MAS is equal to H2. So H1 minus H2 minus H1, so MS upon MA can be written as from here, that is the W2 minus W1. So इस तरह की इक्वेशन हम और भी अप्लाई कर चुके हैं. आप ये
लास्ट वीडियो लेक्चर में, तो आप वहाँ से भी आपको पता होगा. सो दिस इज ऑल द heating and humidification. So next lecture we will discuss the numerical based on this topic. Some numerical will discuss on the live class, and the some will be through the YouTube video. Okay, thank you students.